I'll request Dr. Ifza to please say some words because she has to go back there. اور اس کے بعد ہم چاروں سے بات چیت کریں گے, آپ کی ماڈلز وغیرہ دیکھیں گے اور سرٹیفکیٹس. السلام علیکم. اور سب سے پہلے میں کرنل صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا یہاں پہ بلایا, اور بچوں کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے اسکول کے بچوں کو, کیونکہ بیفور آئی ٹاک میں اپنا ایک تھوڑا مختصر تعارف بھی کرا دوں. میرا نام ڈاکٹر حفصہ رشید ہے. میں نے یو پی سے یونیورسٹی آف لیڈس سے پی ایچ ڈی کی ہے, اور اس کے علاوہ پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر ریسورسز, جو کہ پہلے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی خاصی ادارہ تھا, آج کل منسٹری واٹر ریسورسز کے ساتھ ہے. وہاں پہ مجھے تقریباً 30 ایئرس میں تعلیم کیا ہے. اور اپنے ادارے کا تھوڑا سا تعارف کروا دوں. ہمارا ادارہ پاکستان میں ایک واحد ادارہ ہے جو کہ پانی کے اوپر ریسرچ کرتا ہے, اور ایز سچ واٹر ریسرچ کا کوئی اور ادارہ اتنا مطلب ایک ڈفرنٹ ڈائنامکس کے اوپر کام نہیں کر رہا. واٹر مینجمنٹ کے ادارے ہیں, ایگریکلچر کے ادارے ہیں, پبلک ہیلتھ کے ادارے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے واٹر جتنے بھی پانی کے مسائل ہیں ہمیں ان سب کے اوپر کام کرنا ہے, چاہے وہ ایگریکلچر ریلیٹڈ ہیں, اریگیشن ریلیٹڈ ہیں, ڈومیسٹک واٹر ہے, ڈرنکنگ واٹر ہے, ویسٹ واٹر ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاکستان آپ کو ایک بہت بلیسڈ کنٹری ہے. ہم اس کو ہمیشہ ایک بیمار کے طور پہ دیکھتے ہیں نا, کہ بیماری کے بارے میں بات کرتے جائیں. ہمیشہ ہمیں ایز اے نیشن یہ عادت ہے کہ ہم مسائل کے حل کے بارے میں فوکس کریں گے. یہ خراب ہے, وہ خراب ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. ہم نے ہی تو ٹھیک کرنا ہے. اب میں بہت ساری کنٹریز میں گئی ہوں, یو ایس اے کی 15 اسٹیٹس میں گئی ہوں, اور بہت سارے ملکوں سے میں نے ٹریننگس لی ہیں, اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہاں پہ ایسا کیا ہے جو کہ ہم نہیں کر سکتے. صرف ہم نے اور وہاں کے لوگوں میں کر. زمین بھی وہی ہے, آسمان بھی وہی ہے, پانی بھی وہی ہے, بلکہ ہمارے پاس سب کچھ زیادہ ہے. آپ جبکہ بلوچستان سے لے کر آپ سندھ تک, ریڈین سی تک چلے جائیں, آپ کو پانی بھی ملے گا. آپ کو جیوگرافیکل مطلب سطحی طور پہ جو زمین کا فرق ہے وہ بھی ملیں گے. مختلف طرح کے ہمارے لوگ بھی ملیں گے. صرف ہمارے پاس وہ سسٹم نہیں ہے جس میں ہم لوگوں کو حکمرانوں نے بچپن سے اپنی قوم کی تربیت کرتی ہے. بس وہ سسٹم ہے, اور پانی بھی ہے, زمین بھی ہے, ایگریکلچر بھی ہے, کسی چیز کی کمی نہیں. تو اب ہم چونکہ تھوڑی سی فیل جنریشن ہے, تو اس لیے تو ہماری ساری ایکسپیکٹیشن اپنے بچوں سے ہیں, جو کہ انشاءاللہ دے ول بی دا فیوچر بلڈر آف پاکستان. تو پانی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری کام کیا ہے, ہم وی آر ورکنگ ایوری ویئر. اب سب سے پہلے میں گراؤنڈ واٹر کی بات کروں گی. ایک ٹائم تھا اسلام آباد کے اندر 50 فٹ پہ 15 فٹ پہ پانی نکل آتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ سچویشن ہو گئی ہے کہ اب ہم 500-600 فٹ تک جا رہے ہیں. کوئٹہ میں چلے جائیں, کوئٹہ ویلی نیکسٹ 10 ایئرس میں مکمل طور پہ پانی ختم ہو جائے گا. 1500 فٹ سے بھی ہم نیچے جا رہے ہیں اس وقت. باقی بھی سٹیز میں آپ جائیں, اسی طرح سے ہمارا گراؤنڈ واٹر جو ہے آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے. آپ لوگوں نے آپ نے کبھی سوچا بچوں کہ کیوں پانی کم ہو رہا ہے؟ اگر آپ پانی واٹر سائیکل کو آپ پڑھتے ہیں نا سائنس میں, ہائیڈرولوجیکل سائیکل پڑھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کہا ہے کہ ہم پانی اوپر سے برساتے ہیں, اور وہ اب کوئی 500 کے قریب آیات ہیں قرآن پاک کے اندر پانی کے اوپر. جتنا پانی اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیج دیا ہے وہ اتنا کانسٹنٹ رہتا ہے, وہ ختم نہیں ہوتا. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن اس میں پرابلم کیا ہے, ہماری نالائکی اور ہماری مس مینجمنٹ. ہم نے ہر جگہ پلازے بنا دیے. مطلب میں یو کے میں دیکھتی تھی وہ میوزیم بناتے ہیں, وہ لائبریریز بناتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ ریسرچ سینٹرز بناتے ہیں. ہم نے کیا بنایا ہے, ہم نے تو ریئل اسٹیٹس لے لیے. ہم پلازے بنا رہے ہیں, مارکیٹس, مالز اینڈ ریئل اسٹیٹس, یعنی ہم بلڈنگ اور پراپرٹی ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرتے ہیں. میں نے کسی شہر میں نہیں دیکھا بچوں کے لیے کوئی میوزیم بنایا گیا ہے, بچوں کے لیے کوئی لائبریریز بنائی گئی ہیں, یا بچوں کے لیے کچھ ایسے کلبس بنائے گئے ہیں جہاں پہ بچے ایروسپیس کلبس بنائے جائیں. مطلب دیر آر سو مینی تھنگس جو کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں. میں نے آج تک پاکستان میں کوئی ایگریکلچر میوزیم نہیں دیکھا. تو ہماری یہ نالائکیاں ہیں جن کو ہم نے ایڈمٹ کرنا ہے اور اس کو کنفیس کرنا ہے, اور اس کو پھر ہم نے ٹھیک کرنا ہے, کیونکہ باہر سے کوئی ٹھیک کرنے نہیں آئے گا. جو باہر سے آئے گا وہ خراب کرنے آئے گا. تو irrespective of these political and other types of the issues, ہمارا پرپس, ہمارے ادارے کا پرپس یہ ہے کہ ہم جب تھر میں اور چولستان میں کام کر رہے ہیں تو پرپس یہ ہے کہ اگر ہم چولستان کی بات کریں تو ایک انسان
20 जानवरों को मैनेज करता है, जिसे लाइव स्टॉक कहते हैं, जिससे हम दूध भी लेते हैं, अंडे भी लेते हैं, मक्खन भी लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं. तो हमने वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड्स, बड़े बड़े पॉन्ड्स, जिसमें एक पॉन्ड में 450 मिलियन गैलन्स पानी आता है, वो इंट्रोड्यूस करवाया और वो कोई 110 पॉन्ड्स हमने बना दिया. उसको कॉपी किया चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, उसने इतने ही पॉन्ड्स बड़े बड़े और बना दिए. जैसे ये इलाका है, जब यहाँ पे एक पॉन्ड आप बड़े बड़े बना दें, इसमें जो बारिश का पानी है वो स्टोर रहेगा, और वो बारिश के पानी को कि उसकी आबी बुखारात ना बने, इसकी भी टेक्नोलॉजी, ठीक है, वो पानी आपके एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ होगा, आपका जो लाइफ स्टॉक है उसके लिए भी यूज़ होगा, और फिर उसको ट्रीट करके वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी इस्तेमाल होता है. इसी तरह से थर है, थर के अपने प्रॉब्लम है, उसमें भी हम यही वाली टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. इसके बाद फिर सिलाइन एग्रीकल्चर. हमारा सिंध के अंदर आपको पता है कि पानी में जो पानी है वो सिलाइन है, यानी कि नमकीन पानी है, और इसी तरह बेशुमार हमारे पाकिस्तान के इलाकों में नमकियात है. आपके बिल्कुल हमसाए में पिंड दादरखान है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा. तो सिलाइन एग्रीकल्चर को हमें लेके आना है, ऐसे कि हम सैलिनिटी को मैनेज करें. तो उसके लिए बहुत सारे पौधे हैं, बहुत सारी फसलें हैं, ऐसी वैराइटीज़ हैं, इस तरह की फ्रूट ट्रीज हैं जो कि सैलिनिटी में हेल्प कर सकते हैं. इसी तरह सिलाइन एक्वाकल्चर. एक्वाकल्चर कहते हैं कि फिश को ग्रो करना. तो ऐसी फिशेस को पाकिस्तान में हमें ग्रो करवाना पड़ेगा जो कि सिलाइन वाटर के अंदर, नमकीन पानी के अंदर ग्रो करें. तो ये सारी रिसर्च हमारी चल रही है. इसके अलावा हमारे पास फिर ये है कि हमने एग्रीकल्चर में ICT टेक्नोलॉजीज़ को कैसे यूज़ करना है. बजाय इसके कि हम एक फॉर्म पे 100 बंदे लगा दें, वो और तरीके टेक्नोलॉजीज, ICT टूल्स, मोबाइल डिवाइसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि आप सब इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आप उसको गूगल करेंगे, आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि आप एक फार्मर जो है वो पूरी ज़मीन को 100 ग्राम को या 100 एकड़ को घर बैठ कर मैनेज करते हैं. बाहर की टेक्नोलॉजी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इरीगेशन, 2 बंदे इरीगेशन करेंगे फसलों को पानी के लिए. और इसी तरह से हम इन चीज़ों के ऊपर भी काम करें. हम तकरीबन 20,000 फार्मर्स को हर हफ्ते मैसेज भेजते हैं इंटरनेट के ज़रिए, और उसके मोबाइल डिवाइस के ऊपर SMS आता है कि उसने अपनी ज़मीन पे कितना पानी लगाना है, कब लगाना है, बारिश कब होगी, बारिश के मुताबिक वो पानी कब लगाना है. तो इस तरह एग्रीकल्चर के अलावा हम इस वक्त वाटर कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं. अभी हमने वाटर कंजर्वेशन की एक पॉलिसी बनाई है जो कि इंशाल्लाह वो दूसरी पॉलिसीज़ की तरह डेड नहीं होगी, क्योंकि हम पॉलिसीज़ बनाने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसको उस पर अमल करने में हम इतने अच्छे नहीं हैं. तो अभी हमने बनाया है कि एग्रीकल्चर में कम पानी से कम पानी ज़्यादा पैदावार कैसे ले सकते हैं. इसी तरह से डोमेस्टिक सेक्टर, यानी हम घरेलू सतह पर कमर्शियल बिल्डिंग्स में, इसमें हम पानी को बचा कैसे सकते हैं. तो इस्लामाबाद के अंदर हमने ज़मीन के पानी को ऊपर करने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमने प्लाजे बना दिए, हमने सारी जितना भी इलाका था, किसी भी बड़े शहर में आप देखें तो हमने उनको पक्का कर दिया. कहने का आम जबान में है कि हमने पेव कर दिया. ज़मीन जो बारिश हमें अल्लाह ताला देता है, कितनी बारिश होती है हमारे पास, वो पानी ज़मीन के अंदर सीप नहीं कर सकता, बल्कि नालों में जाके समुंदर में गिरता है. तो अभी हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ में ग्राउंड वाटर रिचार्ज वेल्स, ग्राउंड वाटर पिट्स को इंट्रोड्यूस किया है, और इस्लामाबाद के अंदर भी कोई 120 रिचार्ज वेल्स बनाए हैं. और CDA ने अभी बिल्डिंग कोड्स में ये बात कंपल्सरी कर दी है कि हर घर का और हर बिल्डिंग का रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा. तो इसी तरह हम, ये तो बड़ी बड़ी बातें थी, इस पर हम लगे हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर हमारी रिसर्च प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. लेकिन मैं वाटर क्वालिटी की यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करूँगी कि पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च जो है वो कई सालों से, 20 साल से ज़्यादा हो गया हमें. हम हर 4 महीने के बाद पाकिस्तान की वाटर को मॉनिटर करके वेबसाइट पे और अखबारों में रिजल्ट्स देते हैं. लोगों को पता चले कौन सा पानी सेफ है और कौन सा पानी सेफ नहीं है. पीने के पानी को हम रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट्स को मॉनिटर कर रहे हैं, उसको कैसे मेंटेन रखना है उसके बारे में हम एडवाइस भी दे रहे हैं. तो इसके अलावा हमारा एक बहुत स्पेशल प्रोग्राम है जिसका नाम है स्कूल अडॉप्ट द स्कूल प्रोग्राम. हमारे हर 24 सेंटर से हमारे हर सेक्टर में 2 स्कूल्स अडॉप्ट किए हैं. हमें अपने 2 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाना है. हम चूँकि एजुकेशन में नहीं है, सारी स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, लेकिन वी आर ट्राइंग कि एक स्कूल कैसा होना चाहिए. उस स्कूल में पीने का साफ पानी बच्चों के लिए हो, वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हो, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो, क्लीन ग्रीन एनवायरनमेंट हो, क्लीन एंड इम्प्रूव टॉयलेट्स हो,
हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज हो और फिर बच्चों का वॉश क्लब हो और फिर टीचर्स की ट्रेनिंग हो. तो वी आर इम्प्लीमेंटिंग ऑल दीज प्रोग्राम्स अक्रॉस द कंट्री. फिर हम अवेयरनेस सेशंस करवा रहे हैं डिफरेंट टाइप के, और उसमें पाकिस्तान वाटर वीक है, जैसे बाहरी वाटर वीक्स होती हैं वो हमने ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं. और वो हम बच्चों को, स्कूल और कॉलेज के बच्चों को बहुत बड़ा उसका लेवरेज है. ऐसे कॉम्पिटिशन, डिबेट कॉम्पिटिशन, ये जो आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं इनके कॉम्पिटिशन, तो हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, आप सब लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो अब थोड़ी सी बात पानी के मुताबिक, ये पानी जितनी बड़ी नेमत है हमने इसको अपने लिए ज़रूरत बना ली है, क्योंकि हम जितना वेस्ट वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, गंदा पानी हमारे मुल्क में, आप जिस सिटी में आप जाएंगे आपको यही सीवरेज का पानी बहता हुआ नजर आएगा. और अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 8% पानी सिर्फ ट्रीट हो रहा है, बाकी 92% हम दरियाओं और समुद्रों में डाल रहे हैं. जब हम अपने बचपन में देखते थे तो दरिया साफ होते थे, अब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सब नालों में कन्वर्ट हो चुके हैं. इवन हमारा सी भी, उसका जो बैंक है, सी शोर है, वो भी एक नाले में कन्वर्ट हो गया. तो ये हमारी नलायकी है, ये किसी और चीज़ की नलायकी नहीं है. हमारा वो गंदा पानी, वेस्ट वाटर फुल ऑफ एनर्जी होता है, उसको अगर यूज़ किया जाए, ये वो आइडियाज़ हैं जिसके बारे में आपने सोचना है. इसके ऊपर जब आप जैसे जैसे मैट्रिक करेंगे, मैट्रिक के बाद आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के एजुकेशन में भी आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी. तो यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स कि क्या आइडियाज़ हैं, इस पे पाकिस्तान को किस चीज़ की ज़रूरत है, उस पर काम. जब आप उस पर काम करेंगे, और वेस्ट वाटर की मैं बात कर रही हूँ कि उसकी ट्रीटमेंट के सिस्टम्स के ऊपर काम करना, उस ट्रीटमेंट के सिस्टम्स की टेक्नोलॉजीज़ को पाकिस्तान में लाना और वैसी टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना, उसको चलाना बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि वो पानी आपके एग्रीकल्चर में भी यूज़ होगा, वो पानी आपकी एक्वाकल्चर यानी कि फिश को जो ग्रो करना है उसके लिए भी यूज़ होगा, वो पानी आपके नॉन इरिगेशन के लिए भी यूज़ होगा, और वही उस पानी से आप एनर्जी भी बना सकते हैं और उसी पानी से आप गैस भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये सिर्फ कुछ आइडियाज़ हैं कि आप पाकिस्तान के पानी के प्रॉब्लम्स को सोचें, बाहर उसी ऊपर क्या हो रहा है. एक चीज़ देखें, मैं ये नहीं कहती 10 चीज़ें नहीं कर सकता इंसान, एक चीज़ पे सोचें और फिर उसके ऊपर स्टडी करें. इतना स्टडी करें कि जब आप यूनिवर्सिटी में जाएं तो आपका माइंड बिल्कुल एक क्लियर डायरेक्शन में हो कि आपने क्या करना. और जैसे कर्नल साहब ने कहा, ये इलाका, ये लैंड होना, बलूचिस्तान में जाएँ ज़मीन भी ज़मीन है, इतनी ज़मीन है कि मतलब सबसे बड़ा हमारा प्रोविंस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पानी का कि ये जो सिस्टम वहाँ पे हमें बनाना चाहिए था, हमने वो वहाँ पे डेवलप नहीं किया. फिर इसी तरह आपके पास देखिए समुंदर है, समुंदर के पानी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, डिसैलिनेशन कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ों के ऊपर अभी हम फोकस्ड हैं, हम भी काम कर रहे हैं. तो सिर्फ मैं आपके साथ वो लंबी छोड़ी रिसर्च शेयर नहीं करना चाहती. दीज आर जस्ट सम ऑफ द आइडियाज़ जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बच्चों का फ्यूचर इसके साथ रिलेटेड है. कोई भी पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का ताल्लुक वाटर सिक्योरिटी के साथ है, ये वाटर सिक्योरिटी का ताल्लुक एनर्जी सिक्योरिटी के साथ है, हेल्थ सिक्योरिटी के साथ है, और आपकी इकोनॉमी के साथ है. वाटर के बगैर हमारी इकोनॉमी एक पैरालाइज्ड इकोनॉमी. ये कुछ आइडियाज़ हैं, और बाकी आपके प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह हम देखेंगे. और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप लोगों ने कुछ मॉडल्स बनाए हैं, और आप हमारी वेबसाइट भी देखिए, आपको वहाँ पे भी बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे. आपको मैं इनवाइट करती हूँ, आप जब आना चाहें. SRWR में लोकेटेड है, और हमने अपने इदारे को ज़ीरो डिस्चार्ज के ऊपर फोकस करवा लिया है. हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी इदारे के अंदर लगी है, हमारा पानी का कोई कचरा इदारे से बाहर नहीं जाता. तो यू ऑल आर वेलकम. आप जब इसको विजिट करना चाहें, लेट अस नो, वी विल गिव यू आवर हॉस्पिटैलिटी एंड अ विजिट प्रोग्राम. और मेरी बेस्ट विशेस है आप सब लोगों के लिए, स्पेसिफिकली बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों ने और बुजुर्गों ने, क्योंकि जबान में कहा जाता है कि देयर शुड बी अ लिंकेज बिटवीन द वाइस जनरेशन एंड एम्बिशियस जनरेशन. तो हमारे बुजुर्ग हमारी वाइस जनरेशन और आप लोग हमारे एम्बिशियस जनरेशन, और हम बीच में एक लिंक. ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, और थैंक यू कर्नल साहब, एंड थैंक यू एवरीवन.